famous personalities. Famous personalities means a person who is famous for something. ठीक है, personality क्या होता है? कोई भी कोई भी शख्स जो किसी अपने खास काम की वजह से फेमस हो जाए तो वो हमारे लिए एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है. ठीक है. Some people get famous because they have special talents and excellence in their fields. I am reading page number 104. While others are heroes because they help people and are courageous. अब वो कह रहे हैं कुछ जो है वो अपने टैलेंट और एक्सीलेंस की वजह से फेमस होते हैं और कुछ जो होते हैं वो वैसे ही आम लोग होते हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं या वो इतने बहादुर होते हैं, वो हीरो बन जाते हैं अपनी सोसाइटी के लिए. There are heroes in every country, society and neighborhood where we and they live around us. और ये हमारे आसपास हर कोई भी जो कंट्री है दुनिया में उसमें कोई ना कोई फेमस लोग जरूर होते हैं, ऐसे हीरो जरूर होते हैं जो अपने टैलेंट की वजह से फेमस हो जाए या अपने अच्छे काम की वजह से हो जाए. So the first hero that we are going to discuss is Abdul Sattar Ethi. Yes, can anyone know about him? Abdul Qadir, you know about Abdul Yes, Sattar? ma'am. Yes, can you tell me who was Abdul Sattar Ethi? Ma'am, he helps. Ma'am, he helps. Ma'am, he helps poor people. I know him. G. Anas? Yes, he used to help poor and needy people. Okay, good. He was a person, he was a common man and he used to help a poor and needy person. That's why he became famous for his social work. Let's see what the book says about it. Homeless people, the mentally ill people with disabilities, people in need of medical assistance and disaster relief through much of the world. आपको पता है कि हर दुनिया के हर जगह जो है ऐसे लोग होते हैं जिनके पास घर ना हो, जो बीमार हो, जो जिनको जो है कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं होता. ठीक है. And the relief through much of the world brings the name of Abdul Sattar Ethi to many people's mind. जब भी हम ऐसे लोगों की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो है अब्दुल सत्तार ईदी का जो है नाम सबसे पहले आता है. अब्दुल सत्तार ईदी इज नोन फॉर हिज नॉन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. ये इन्होंने नॉन प्रॉफिट मीन के जिनसे इनको कोई पैसा नहीं मिलता था और इन्होंने सोशल वर्क को अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोली अपने ही पैसों पे और लोगों की मदद की बगैर किसी प्रॉफिट की. The Ethi Foundation, a charitable institution, was founded in 1951. It operates largely in Pakistan and other parts of the world. Not only in Pakistan, but दुनिया के बहुत सारे जगहों पे इनकी ये जो है charitable organization या institution work कर रहा है. The Ethi Foundation is recognized for his humanity service, helping and giving aid to needy people. And Abdul Sattar Ethi has been awarded the Shield of Honor by the Pakistan Army Nishan Imtiaz by the government of Pakistan and Lenin Peace Prize by the government of USSR. The Raman Magsaysay Award International doesn't prize in addition to many more of his work. ये कुछ इनकी अचीवमेंट्स है. ठीक है. अब हर जो फेमस पर्सनैलिटी उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया और लास्ट में बताया कि उनको किस किस अवार्ड से जो है नवाजा गया या ऑनर किया गया. ठीक है. आपने जो है ये बस कुछ बातें इस चैप्टर में याद रखनी है कि अब्दुल सत्तार ईदी कौन थे, उन्होंने क्या किया और उनको कौन कौन से अवार्ड मिले. नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज सर हाकिम मोहम्मद सईद. Sir Hakim Muhammad Saeed was one of the personalities of Pakistan. He was a scholar in the field of Eastern medicine, okay? Philosophy, science, health, and religion. He established the Hamdard Laboratories in 1948. आपने अक्सर अभी भी देखा होगा हमदर्द की जो है मेडिसिन आपने देखी होगी, कंपनी देखी होगी, उसके ऊपर काफी सारी ऐसी कंपनी थी और पहले अब तो बहुत सारी आ गई लेकिन स्टार्ट में एक ये हुआ करती थी हमदर्द की मेडिसिन. ठीक है. तो ये उन्हीं की इन्होंने ही वो लेबोरेटरी जो है फाउंड की थी 1948 में. Serving as its first director, Sir Hakim Saeed was the founder of Hamdard University. इन्होंने यूनिवर्सिटी भी बनाई हमदर्द के नेम से, where he served as his first vice chancellor and one of its professors. वहाँ पे ये vice chancellor भी थे उस यूनिवर्सिटी के और प्रोफेसर भी थे. Throughout his life, he authored, edited, and compiled over 200 books on several subjects in Urdu and English. इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है authored means किताबें लिखी, edited उनको edit किया, compiled
बहुत सारी बुक्स को आपस में कंबाइन किया। 200 से ज्यादा बुक्स की इन्होंने जो है कंपाइलेशन की और बहुत सारी बुक्स उर्दू और इंग्लिश में लिखी। ही वाज द रेसिपिएंट ऑफ निशान इम्तियाज फॉर हिज मोस्ट एस्टीम्ड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी with an institution इदारा सईद set up to preserve and promote his research efforts। ठीक है, इन्होंने जो है इनको निशान इम्तियाज दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें इनकी कंट्रीब्यूशंस के लिए, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, साइंस और मेडिसिन की फील्ड में इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। टेक्नोलॉजी की फील्ड में उन्होंने अपना इनका एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन ही बनाया इदारा सईद के नाम से, जिसमें इनकी सारे के सारे जो इन्होंने रिसर्च की हुई है वो मौजूद है। नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी इज शमशाद अख्तर। ठीक है, डॉक्टर शमशाद अख्तर इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। शी वाज द फर्स्ट लेडी जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर रही थी। आप अक्सर अगर आपके पास कभी कोई पुराना नोट आए तो आप उस पे देखना इनका नाम लिखा होता था, अब तो कोई और है तो आप वहाँ पे ये देख सकते हो। शी assumed as governor for the period of 3 years starting December 2005। 3 years तक ये रही। Dr. Shamshad was born in the city of Hyderabad, Pakistan. Her professional experience has not only been privileged in Pakistan but with prestigious position in multinational organization of her field in a number of countries। ना सिर्फ पाकिस्तान में इनकी contributions को जो है ऑनर किया गया, बल्कि बाहर के मुल्क में भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी इनको जो है बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है। Among her position are Director General South East Asia and Vice President Middle East and North Africa, the World Bank। मतलब ये इनको पाकिस्तान में तो ये गवर्नर थी स्टेट ऑफ बैंक की, और इन जगहों पे इनको ये पोजीशन से ऑनर किया गया है। नेक्स्ट इज उस्ताद मेहदी हसन खान। उस्ताद मेहदी हसन खान was known as the king of गजल। ठीक है, अभी तक इन जैसा जो है आप कह लो कि सिंगर कह लो या क्लासिकल म्यूजिशियन पाकिस्तान में नहीं हुआ है। इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में। He was famous as a ghazal singer which in the modern era has brought a different आपकी आवाज क्लियर नहीं है। poetry। Okay, now I think it will be clear। Before his popularity, Mehdi Hasan spent his life as a mechanic। ठीक है, ये गजल पढ़ते थे, लेकिन गजल से पहले ये मैकेनिक के तौर पे काम करते थे। When ghazal was overlooked by other modern musical styles, however, his interest and passion for music made him dedicate his practice continuously। आपको पता है जब he used to sing a गजल, उस वक्त गजल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट फिर भी इन्होंने अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखा। आप लोग अपनी ये स्क्रीन बंद करें और ये व्हाइट बोर्ड मत यूज करें प्लीज, whoever is using। यस, तो उस वक्त जो है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन इनके बाद जो है अब पता लगा कि कितना अच्छा इनके जैसा जो है गजल गाने वाला अभी तक जो है नहीं हुआ है। However, his interest and passion for music made him dedicate his practice. By 1957, the yet unknown singer found the opportunity on Radio Pakistan as a themed singer। इनको फिर रेडियो पाकिस्तान वाले अप्रोच किया। Ustad Mehdi Hasan has ruled the world of singing and melody for generations and had been honored by the government of Pakistan as well as Nepal। He received Tamga Imtiaz, Hilale Imtiaz by the government of Pakistan, while the government of Nepal has honored him award of Gorkha Dakshina Bahu। ठीक है, ये awards इनको मिले थे नेपाल में, और पाकिस्तान में इनको तमगा इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज दिया गया। Next famous personality is Muhammad Mahmud Alam। इनको MM Alam भी कहते हैं। He was the most famous figures in the histories of Pakistan in the entire world। ठीक है, क्यों है ये? He is popularly known as MM Alam and was Pakistan's fighter pilot who defended the skies of Pakistan in the war of 1965। Please अपने white board बंद कर दें। ठीक है, 1965 में जब इंडिया ने हमला कर दिया था पाकिस्तान पे, उस वक्त इन्होंने जी मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोरखा? बेटा ये नेम है अवार्ड का, जैसे तमगा इम्तियाज है, हिलाले इम्तियाज है, तो इस तरह से ये उसका अवार्ड का नेम है। इसका मीनिंग इट्स अ नेपाली वर्ड। जी मैम, व्हाट इज एम आलम? MM Alam is a name। It is a name of a person। Muhammad, M means Muhammad,
सेकंड M महमूद एंड A मींस आलम, ठीक है, MM Okay, आलम, ma'am. मोहम्मद Thank महमूद, you. इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, Okay, ma'am. ठीक है। जब 1965 में इंडिया ने हमला कर दिया था तो ये पहले पायलट थे जिन्होंने जो है क्या किया था, he flew his jet powered aeroplane F-86 and shot down 5 enemies aeroplane in less than 1 minute। उन्होंने 5 एरोप्लेन्स को जो है शूट करके गिराया था लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड से भी कम टाइम इन्होंने 5 इंडिया के जो वो थे आप कह लो प्लेन थे उनको गिराया था। तो ये इनकी जो है अभी तक ये रिकॉर्ड आई थिंक किसी ने नहीं तोड़ा, इसलिए ये पाकिस्तान में भी और पूरे वर्ल्ड में ही इज द फेमस पर्सनैलिटी। आउट ऑफ द 5 एरोप्लेन्स 4 वर शॉट डाउन बाय हिम इन लेस देन 30 सेकंड्स। अब उन 5 में से 4 जो थे वो तो 30 सेकंड से भी कम टाइम में उन्होंने शूट किए थे। In a jet powered aeroplane, a world record that still exists, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है अभी तक एग्जिस्ट करता है, किसी ने भी ये रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किया। He was awarded the Congressional Military Decoration of Sitar-e-Jurrat for his achievements in 1965. He is well known by many fighter pilots around the world as Little Dragon। इनको Little Dragon का जो है टाइटल दिया गया है बहुत सारे पायलट से throughout the world। The war between the USSR and Afghanistan was the last war in which MM Alam participated to ensure the protection of Pakistani skies against any enemy combat aeroplanes। ठीक है, ये इनकी आखिरी जंग थी जो उन्होंने फाइट की थी, जो कि अफगानिस्तान और यूएसएसआर की हुई थी। MM आलम लेटर रिटायर्ड एज एयर कमोडोर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, और फिर ये रिटायर हो गए थे एज अ पाकिस्तान एज अ एयर कमोडोर ऑफ PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक है, next is Ataur Rahman. Professor Dr. Ataur Rahman is Pakistan's leading scientist and scholar, expert in the field of organic chemistry. He is Pakistan leading mind in the matter of scientific affairs। ये जो है साइंटिस्ट है पाकिस्तान के लीडिंग साइंटिस्ट में आते हैं, ठीक है। Such as that his research has influenced the higher education system and research practices in the country. He had led a prestigious academic record from his school days. He has been awarded the honor of doctorate in the field of science for his accomplishments, having contributed over 840 research publications in the field of his experience। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया है, 840 प्लस इनकी अपनी रिसर्च की आप कह लो रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है। Professor Dr. Ataur Rahman's prime research activity circle around chemistry and its various fields। इनकी जो मेजर contributions है वो केमिस्ट्री की फील्ड में है। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस जिसमें केमिकल और केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा जाता है। आप में से अगर किसी ने भी अपना ये व्हाइट बोर्ड ऑन किया हुआ है और उस पर जो ड्राइंग कर रहे हैं प्लीज इसको बंद कर दें। His contributions into the field of natural product chemistry have also privileged him to be entitled for contributing in the encyclopedia the studies of natural product chemistry। ठीक है, for having made Pakistan progress in numerous fields of science, Professor Dr. Ataur Rahman has been honorably distinguished by the nation of Pakistan with इनको तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और निशान इम्तियाज जो है अवार्ड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, नेक्स्ट इज, ये तो बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, आप सबको पता होगा। नाउ ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान। ठीक है, ही वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। ही इज द वन हु हैज वॉन द वर्ल्ड कप फॉर द कंट्री। ठीक है, उसके बाद अभी तक पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप नहीं विन किया 1992 के बाद। तो आप मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा, मैं आपसे कह रही हूँ कि व्हाइट बोर्ड मत यूज करें, उस पर आप लाइन ड्रॉ किए जा रहे हैं और वो सारी स्क्रीन पे मुझे शो हो रही है। Please turn off your whiteboards. Imran Khan has without doubt been Pakistan's most successful cricketer, leading the country to victory in several barriers. In addition, his personal record in cricket is also an example for many players। ठीक है, एक तो उन्होंने वर्ल्ड कप विन किया, उसके अलावा ये बुक जो है इसमें ये तब की है जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने इनका क्रिकेट का ही कैरियर लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है वर्ल्ड कप तो विन किया, उसके अलावा इनका जो रिकॉर्ड है 3807 रन और 362 विकेट्स का। ठीक है,
और he was an all-rounder. In 2010, the International Cricket Council inducted Imran Khan into his Hall of Fame for his impressive achievements. Cricket is not only the thing Imran Khan has in president. He set up, उसके अलावा इन्होंने शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर पाकिस्तान बनाया, जो कि पहला कैंसर हॉस्पिटल है, ठीक है, जहाँ पे जो गरीब होते हैं उनका थोड़ा बहुत फ्री में इलाज किया जाता है. The hospital research center was named in the memory of his mother. The hospital treat people who are affected by cancer up to 75% free of charge, क्योंकि आपको पता है जो कैंसर है उसका जो इलाज है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए 75% फी वहाँ पे इलाज होता है. इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड ही होल्ड्स अ पोजीशन एज इट्स चांसलर एंड आल्सो द चेयरमैन ऑफ द मियावाली डेवलपमेंट ट्रस्ट दैट एस्टैब्लिश अ टेक्निकल कॉलेज, नमल कॉलेज. वहाँ मियावाली में इन्होंने एक नमल कॉलेज बनाया है, वहाँ पे ये चांसलर है. और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, ठीक है, वहाँ जो वहाँ का भी जो है ये चांसलर है. इनकी जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली वो वहीं से ब्रैडफोर्ड से ही एफिलिएटेड है. अच्छा, उसके बाद नो मोर में देखें अरफा करीम है. शी वाज द यंगेस्ट फेमस पर्सनालिटी, ठीक है. व्हाट शी हैज डिड, शी हैज received the certification as Microsoft certified professional at the age of 9 in 2004. But she was the youngest in the world to be awarded this qualification by Microsoft. Or in Pakistan, she was awarded the Fatma Jinnah Gold Medal in Salam Pakistan Youth Award Talent. And Arfa Kareem जो है वो 14 जनवरी 2012 को एक हार्ट अटैक की वजह से she died, ठीक है. But she was the youngest one to achieve this award. सो दैट वाज अ टॉपिक. अभी आपने ऐसा करना है कि एक्सरसाइज ए जो है वो आप अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे, इसको अच्छी तरह से रीड आउट करके, और एक्सरसाइज बी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप नोटबुक पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है. और उसके बाद जो है मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी कि आपकी क्या एक्टिविटी है. कल वाली एक्टिविटी अभी तक मुझे किसी ने नहीं भेजी साइंस की, जिसमें मैंने आपको कहा था. मैम मैंने भेज दी थी. वीडियो कहाँ भेजी आपने? मुझे नहीं मिली. मैम मैंने व्हाट्सएप पे भेज दी थी. किसने? चले मैं उसको चेक कर लेती हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है. और अभी 11 o'clock जो है फॉर बी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज अभी ये क्लास लीव कर दें, क्योंकि आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी. बाकी फॉर ए की तो आगे कोई क्लास नहीं है, तो इसलिए फॉर बी जो है वो क्लास लीव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप वो वाली क्लास ताकि आप अपनी इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लो टाइमली. और जो होमवर्क जो डिटेल्स है इसकी एक्टिविटी की एसएसटी की वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी. Which activity? I will share in the group. Okay. Abdullah, you have sent me the video. Who said that I have sent? Nobody has sent me the science related activity video. For B, Ma'am, science homework is so difficult, so please help us. Sarah, who is saying it difficult? Tabinda? Ma'am, I wasn't saying difficult. Beta, it was not. Achha, that homework that you have to do on books, that I will show you on. But I have asked you to. नहीं, I am not talking about that homework. Page 102 की मैं बात नहीं कर रही. पेज 102 का तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको खुद वीडियो बना के भेजूंगी इंशाल्लाह. आज मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, कि वो कैसे करना है. Okay, मैं एक्टिविटी की बात कर रही हूँ. जो मैंने साइंस की एक्टिविटी बोला था कि आपने एक शॉर्ट वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करनी है. इब्राहिम, आप बेटा लीव कर दें क्लास, क्योंकि आपकी नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होनी है. क्योंकि अभी हमने और कुछ इसमें वैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं. अनस, आप भी लीव कर दो.
Ma'am, please share the science work on the group. Activity? You are talking about the activity? Yes, ma'am. Okay, I will share again. Or you can see the group. Abhi, Okay, ma'am. Face, we are missing you. okay, let's on your video so that we can meet. उसके बाद तो अभी आपकी कोई क्लास नहीं है ना, तो आप लोग ऑन कर सकते हो अपनी वीडियो so that we can see each Ma'am, other. what? Ma'am, what? आई एम सेइंग कि आप लोग अभी आपकी नेक्स्ट तो कोई क्लास नहीं है, तो आप अभी अपनी वीडियो ऑन कर लें ताकि हम एक दूसरे को हेलो कर लें. Okay, ma'am. How are you all? How are you, Sarah? I'm good. I'm on my video. I'm on Vishal, video. how are you, Vishal? Please on my Anas? video. Yes, ma'am. अनस, आप क्लास लीव कर दें, आगे आपकी साइंस की क्लास है, वो आपकी इंग्लिश की क्लास है, तो आप बेटा जा सकते हो. I'm on my video. Who is saying on my video? You can on yourself. It is. Go to the corner of the screen. When you mute and unmute. How's your vacation going? It is written to. And it's pretty boring. Really? But now I think you have enjoying the. You are You cannot enjoying start this your class? video because the whole. No, ma'am. Yes, sir. Please switch on Amirab's video because it is written. Okay, I am doing. Now it's on. Yes. And why aren't the other girls turning on videos like Nishal, Safa, Aisha, and Hadia?